کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دل کو دہلا دینے والی پر اسرار کہانی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور احمد ربیع سونے کی کوشش میں ہی تھا کہ اچانک اس کو لگا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور چل رہا ہے۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے، شاید دن بھر کی تھکان کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں ہی آ رہی تھی۔ باقاعدہ طور پر کوئی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، مگر کون؟ کیونکہ مکان میں تو احمد کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور رات کے اس پہر کون ہوگا جو اس کے گھر کی چھت پر چل رہا ہوگا؟ کہیں کوئی چور تو نہیں؟ پہلا خیال یہی آیا، لیکن وہ خیال بہت جلد ہوا ہو گیا۔ پھر چلنے پھرنے کی ایک اور آواز پر احمد نے غور کیا۔ یہ آواز تو پائل کی تھی۔ کیا میں واقعی میں پائل کی آواز سن رہا ہوں یا میرے کان بج رہے ہیں؟ احمد نے خود سے سوال کیا، لیکن اب پائل کی آواز اور بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس سب کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ احمد کو فیصل آباد کے قریب آباد ایک شہر سمندری میں نوکری کے سلسلے میں جانا پڑا۔ سب سے پہلا چیلنج احمد کو یہ درپیش تھا کہ اس پرائے شہر میں رہائش کہاں اختیار کی جائے۔ اس لیے احمد نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور کرائے کے مکان کی تلاش کا آغاز شروع کر دیا۔ پراپرٹی ڈیلر نے احمد کو مختلف گھر دکھائے، لیکن کہیں کرایہ زیادہ ہوتا تو کہیں احمد کو گھر پسند نہیں آتا۔ احمد تھا بھی کنوارا، تو اس کو کوئی اتنا بڑا گھر تو چاہیے نہیں تھا، اس کو تو ایک کمرہ بھی چل جاتا، لیکن اس طرح کا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ بالآخر پراپرٹی ڈیلر نے احمد کو ایک گھر دکھایا جو سائز میں مناسب تھا، اور سب سے اچھی بات کہ اس کا کرایہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ احمد نے جب کرایہ سنا تو فوراً راضی ہو گیا۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ سنگل سٹوری گھر تھا، جس میں 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ، ایک صحن کے دائیں جانب کچن اور بائیں جانب باتھ روم۔ صحن میں سے ہی سیڑھیاں اوپر چھت پر جا رہی تھیں، اور صحن کے آخر میں مرکزی دروازہ تھا جو گھر کے باہر گلی میں کھلتا تھا۔ کمرے تو 2 تھے، لیکن ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، اور احمد کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مالک مکان کا کچھ ضروری سامان پڑا ہے، اس لیے یہ کمرہ نہ کھولے اور نہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ احمد کو رہنے کے لیے ویسے بھی یہ کمرہ چاہیے تھا، یہاں تو اس کو اتنا بڑا گھر مل گیا تھا کہ اس نے حامی بھالی اور ایڈوانس بھی دے دیا۔ پھر وہ اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کا سامان ہی کتنا تھا، ایک چارپائی، ایک صندوق جس میں کپڑے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ضروری چیزیں۔ سب کچھ ہی ایک کمرے میں آ گیا۔ احمد کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ شہر چھوٹا تھا لیکن مخلص لوگوں سے بھرا ہوا تھا، سوائے اس کے محلے والوں کے جو اس کو نہایت عجیب نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جیسے کہ وہ تو کوئی خلائی مخلوق ہو۔ احمد کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور ابھی تک وہ بہت سکون سے رہ رہا تھا، یہاں تک کہ آج کی رات آئی جب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی موجود ہے اور پائل کی آواز وہ سن رہا تھا۔ اصل میں آج بہت گرمی تھی، اس لیے احمد نے اپنی چارپائی باہر صحن میں بچھا لی تھی، اور آج ہی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ابھی اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ سب اس کا وہم ہے کہ آہستہ آہستہ پائل کی اور قدموں کی آواز اس کے قریب آنا شروع ہو گئی۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا ہے۔ احمد کی پیٹھ سیڑھیوں کی جانب تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جو کوئی بھی ہے سیڑھیوں پر ہی کھڑا ہوا ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی جو کوئی بھی آیا تھا اب وہ واپس چلا گیا ہو۔ احمد کو فضا میں جو ایک بوجھل پر محسوس ہو رہا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا تھا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا، بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ باقی رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو احمد تیار ہو کر نوکری پر چلا گیا۔ سارے دن میں رات والا واقعہ احمد مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ کھانا کھا کر اپنے دفتر کے کچھ کاموں میں مصروف ہو گیا۔ جب کاموں سے فارغ ہو کر احمد سونے کے لیے باہر صحن میں آ کر لیٹا، اس نے لیٹنے کے بعد اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ وقت دیکھ کر احمد کو پچھلی رات کا سارا منظر یاد آ گیا، اور ایک انجانے خوف نے اس کو گھیر لیا۔
कहीं आज भी वो कदमों की आवाज़ आई तो अहमद ने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही अपना सर झटकते हुए गोया खुद को तसल्ली दी, नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है, अकेला रह रहा हूँ ना, इसलिए दिमाग ये खेल खेल रहा है। मेरे साथ अपने दिल को तसल्ली देकर अहमद करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। आज भी इत्तेफाक से उसकी पीठ सीढ़ियों की जानिब थी। अभी उसने करवट ली ही थी कि अचानक फिर वही कदमों की आवाज़ और साथ ही साथ पायल की वो पुरस्रार आवाज़ आना शुरू हो गई। अहमद को तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया हो। वो हर गुजरते लम्हे के साथ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब उसका वहम हो, मगर वो पायल और कदमों की आवाज़ पिछली रात की तरह करीब आती जा रही थी। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। अहमद की तो हालत गैर हो रही थी। खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता वो जो कोई भी था अब नीचे की जानिब आने लगा था। अहमद के वजूद में तो क़यामत बर्पा हो गई थी, क्योंकि वो जो कोई भी था अब उसकी चारपाई की जानिब बढ़ रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ पायल की छन की आवाज़ अहमद की करीब से करीब तर होती जा रही थी। अहमद के आसपास की फ़िज़ा बहुत भारी हो चुकी थी। उसका दम घुटने लगा था और फिर वो आवाज़ उसकी चारपाई तक आकर रुक गई। अहमद को बाकायदा तौर पर यह महसूस हो रहा था कि उसके बिल्कुल पीछे कोई मौजूद है, कोई है जो बगौर अहमद को घूर रहा था। खौफ के मारे अहमद ने पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं समझा। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि सांस भी जैसे रुक रुक कर आ रहा हो। अहमद के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। अहमद की एक आदत थी कि वो अपने सरहाने पॉकेट साइज़ का कुरान पाक रख कर सोया करता था। अहमद को अचानक कुरान मजीद का ख्याल आया और उसने सरहाने से कुरान पाक उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुरान मजीद सीने से लगाने की देर थी कि वो खौफ की शिद्दत जो उस पर गालिब थी उसमें कुछ कमी आ गई और उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अहमद ने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया और उसके साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो कोई भी चीज़ उसके पीछे खड़ी हुई थी उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो कोई भी चीज़ उसके पीछे खड़ी हुई थी उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। और वाकई अब उसे दोबारा से कदमों और पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। अहमद ने कुरानी आयात का विर्द जारी रखा और आवाज़ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते छत तक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आवाज़ बंद होने के साथ फ़िज़ा भी मुकम्मल तौर पर हल्की हो चुकी थी। लगता था कि अब अहमद के चारों तरफ ज़िंदगी वापस लौट आई है। अहमद ने कुरान पाक सराहने रखा, हिम्मत करके अपनी चारपाई से उतरा, डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर गया कि कहीं कोई मोहल्ले वाला तो नहीं जो छत पर किसी तरफ से आकर उसको डराता हो। लेकिन छत पर जाकर उसे इस बात का तो शदीद मायूसी हुई, क्योंकि उसके घर के तीनों अतराफ सिर्फ मैदान था और उसकी एक जानब गली थी। अहमद को ये सब कुछ देखने के बाद याद आया कि उसका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा था। ये तो पहले से ही जानता था कि उसके मकान के साथ कोई और मकान नहीं बना हुआ। इस बात को लेकर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। खैर, अच्छे से तसल्ली करके अहमद वापस आकर दवाई पानी का सोने की कोशिश करने लगा और उसकी कोशिशें रंग ले आईं, क्योंकि वो बहुत जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। आज रात अहमद के साथ जो हुआ था वो काफ़ी परेशान कुन मामला था। अहमद अगली सुबह उठा और ऑफिस चला गया, लेकिन सारा दिन उसके दिमाग में गुज़िश्ता रात को हुए वाक़यात घूमते रहे और उससे काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। दरअसल रात के वाक़यात की वजह से अहमद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ऑफिस वो इसलिए गया था ताकि उसका जहन कुछ तब्दील हो सके और वो किसी हद तक इस मकसद में कामयाब भी हुआ था। लेकिन आखिरकार तो उसे घर ही वापस आना था। अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर घर में कदम रखा। घर का माहौल बिल्कुल भी खौफनाक नहीं लग रहा था। फ़िज़ा भी हल्की फुल्की थी। अहमद का सारा वजूद हल्का हो गया और सारा खौफ दूर हो गया। उसने वज़ू किया, नमाज शाह अदा की, सहन में ही चारपाई पर लेट गया। लेट कर अहमद ने थोड़ी देर गुज़िश्ता रात के वाक़यात के बारे में सोचा, फिर अपना जहन झटक कर सोने के लिए आंखें बंद कर ली। दिल में यही उम्मीद लिए हुए था कि आज कुछ नहीं होगा। फिर उसकी आंख लग गई। रात के किसी पहर अहमद की आंख खुद से ही खुल गई, क्योंकि उसे प्यास लगी थी। उसने पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया, फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली तो रात के 3 बज रहे थे। आज रात के 12 तो कब के गुजर चुके थे। कोई पुरस्कार वाक़या नहीं हुआ था। इससे अहमद के दिल को कुछ सुकून महसूस हुआ। उसने आसमान पर निगाह डाली। आज चांद की 14वीं रात थी
और चांद पूरी आबोताब से आसमान पर दमक रहा था। चारों तरफ चांद की ठंडी ठंडी चांदनी फैली हुई थी और आसमान पर चमकदार तारे सजे हुए थे। अहमद के मुंह पर बेजा मुस्कुराहट आ गई। अहमद को अपने घर की याद आने लगी। वो ऐसी ही चांदनी रातों में अपने बहन भाइयों के साथ अक्सर अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पिया करता था और गपशप लगाया करता था। उन्हें याद करते करते अहमद की अचानक आंखें भर आईं। उसने सोचा कि रिज़्क़ की तलाश में इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले आती है। वो तो खुशकिस्मत है जो अपने मुल्क में ही मौजूद है, वरना लोग तो रोज़ी रोटी की तलाश में 7 समंदर पार भी चले जाते हैं। अभी वो ये सब सोच रहा था कि अचानक उसको वही कदमों और पायल की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उसको हैरत का शदीद झटका लगा जब उसको ये एहसास हुआ कि आज आवाज़ छत की बजाय घर के अंदर की तरफ से आ रही है। उसने थोड़ा गौर किया तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि आवाज़ उस बंद कमरे के अंदर से आ रही थी जिसको ताला लगाया गया था। उसे दरवाज़ा खोलने से मना किया गया था। अहमद टिकटिकी बांधे उस कमरे को देख रहा था। फिर न जाने उसके दिल में क्या आया, वो चारपाई से उतरकर उस कमरे की जानिब चलने लगा। अचानक कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई और आपके किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ आने लगी। अहमद ने आज से पहले ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले उसने ये सब बातें या तो किसी फिल्म में देखी थी या कहानियों में पढ़ी थी, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में पहली बार वो ये सब कुछ सुन रहा था। वो आहिस्तगी से उस जानिब बढ़ गया था कि अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा अंदर की जानिब से पीटा जाने लगा। अहमद की तो सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, कौन हो तुम? और पूछने के बाद उसको खुद ही ये एहसास हुआ कि ये क्या पूछ रहा है, कौन देगा उसका जवाब। लेकिन एक मर्तबा उसको फिर शदीद झटका लगा, हैरत का। जब उसके सवाल किए जाने पर अंदर से दरवाज़ा पीटे जाने का सिलसिला रुका और किसी लड़की की आवाज़ में कोई कमरे के अंदर से बहुत नहीफ आवाज़ में बोलने लगा, मुझे बाहर निकालो प्लीज़, मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। अहमद की हालत ये थी कि उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। कोई औरत इस कमरे में बंद कैसे हो सकती है और उसको किसने कैद किया है? कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ है, तो ये अंदर कौन है? इस तरह के बहुत से सवालात अहमद के दिमाग में घूम रहे थे। उस औरत ने फिर पुकारा, देखो तो जो कोई भी है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। अहमद ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो, अंदर कैसे गई? अहमद अब दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और खड़ा सोच रहा था कि क्या करे, दरवाज़ा खोले या नहीं। अहमद ने फैसला कर लिया कि वो कमरे में बंद औरत की मदद ज़रूर करेगा। उसको मालिक मकान पर शक होने लगा था कि कहीं उसी वजह से तो उसने दरवाज़ा खोलने से मना नहीं किया था कि इस कमरे में उसने किसी मजलूम को बंद कर रखा था। वहाँ पहुंचकर उसने ताले को पकड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की। अभी उसने मुंह से सिर्फ बिस्मिल्लाह ही निकाला था कि अंदर से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। अहमद ने जवाबन कहा कि हाँ खोल रहा हूँ। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ा खोलना शुरू किया था। अहमद दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अहमद ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। अचानक ही अहमद को औरत के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। औरत की हंसी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अहमद को लगा जैसे बिल्कुल उसके पास ही कोई औरत खड़ी है। अचानक से हंसते हंसते वो औरत रोना शुरू हो गई। बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकने की आवाज़ें आने लगी। अहमद अब बहुत खौफजदा हो गया था। उसने पूछा, कौन हो तुम? जवाब में अहमद को सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दी, जैसे कोई औरत बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हो, मेरी मदद करो। अचानक ही अहमद को उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। अहमद ने आवाज़ की सिमत नज़र की तो उसको कोने में बैठी हुई एक लड़की नज़र आई जो सुर्ख लिबास में थी और घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने अपना सर अपने घुटनों में दे रखा था। उसके सियाह बाल ज़मीन को छू रहे थे और वो सिसक कर रो रही थी। क्या हुआ, कौन हो तुम और तुम क्यों रो रही हो? वो औरत अचानक से बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बताओ। वो औरत ऐसे बोली जैसे बहुत तकलीफ़ में हो। हाँ ज़रूर करूँगा, बताओ तो सही, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और कौन हो तुम? उस औरत ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। यह तकसीम हिंद से पहले की बात है, जहाँ मैं और
तुम उस वक्त बैठे हैं। ये हमारा घर था, हम बहुत खुशहाल रहते थे। तकसीम हिंद से पहले इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में से राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की ये खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कुछ कच्चा था, मगर जानकी उसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान उसके सामने पेश थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव जैसे महक सा जाता। अक्सर कहा जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिल भरे खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती थी। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि रात की रानी पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर उसके अलावा कोई और भी महक थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। ना चाहते हुए भी जानकी के कदम उस तरफ उठते चले गए जहाँ रात की रानी कुछ दीवार से ऐसी लगी हुई थी जैसे दीवार पर कोई सब्ज चादर खुशक करने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे कोई चीज सिरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में रात की रानी को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में एक हल्के से चमकते 2 जुगनू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी उस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं दिखते थे, और जैसे ही 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमा हुए थे, ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। वो ठिठक कर रह गई और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नज़र अब भी बदस्तूर उसी तरफ थी, मगर वहाँ सवाए रात की रानी के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज तर थीं। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पर खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं था। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर जाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक ऐसे ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो देर से उठी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाकया घूम रहा था। वो चारपाई से उतरी, मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई। रात की रानी की बेल से कुछ दूर खड़े होकर उसने गहरी नज़रों से सांप की निशानी खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन गीली होने के बावजूद उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे ये पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया हो। कुछ देर वो वहाँ खड़ी रही, इधर उधर देखा, फिर मायूस होकर वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने ये बात किसी को नहीं बताई कि रात उसने यहाँ किसी सांप की मौजूदगी को महसूस किया हो, मगर अगर उसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो उसकी पसंदीदा रात की रानी की बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने माँ बाप को कुछ भी बताने से गुरेज किया। फिर कई दिन गुजर गए। वो कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई, लेकिन एक रात अचानक ही उसकी आंख खुली। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर उसके पास कोई भी नहीं था। उसने अपना वहम समझकर मुंह सर अच्छी तरह लपेटा और सोने की कोशिश करने लगी। जानकी सरगोशी नुमा आवाज़ फिर उभरी, मेरा वहम है। उसने खुद को तसल्ली दी और करवट बदली। जानकी कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ फिर से उभरी। वो उछल पड़ी। बिलाशुबा उसी का नाम पुकारा गया था। कौन है? जानकी ने उस तरफ देखते हुए बमुश्किल पूछा।
अंधेरे में उसे फिर से दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुरख अंगारों जैसे। वैसे ही जुगनू उसने कुछ दिन पहले रात की रानी की बेल पर देखे थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो आंखें फाड़े उसी तरफ देखे जा रही थी। उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि वह चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे के कोने से आवाज आई, पर कौन हो तुम? जानकी को उसके अल्फाज से कदरे हौसला हुआ। उसकी आंखें अब भी उसी तरफ लगी हुई थी जहां अंधेरे में वो दो जुगनू नजर आ रहे थे, और आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीश है, सरगोशी में कहा गया, मगर तुम मुझे अपना दोस्त समझो। साथ एक बार फिर हौसला दिया गया। वो कुछ नहीं बोली, बस खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हुई। उसी लम्हे उस कोने से सरसराहट उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। खौफ के मारे जानकी के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। एक बहुत बड़ा सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें दो जुगनू की तरह लग रही थीं। उसके देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक से भर गया। बिल्कुल वैसी महक थी जो उसने उस रात भी महसूस की थी, जिस रात उसे रात की रानी के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी पर तो जैसे कोई सत्ता तारी हो गया था। वो मुंह खोले बेयकीनी से उसको देखने जा रही थी। मेरा नाम शीश है, मैं जिन्नात के एक मुसलमान कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है, इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं हर रोज़ रात को तुम्हारे घर आता हूँ। पता है क्यों? एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई। मैं उसे ढूंढने की तलाश में तुम्हारे घर तक पहुँच गया। जब मैंने तुम्हारे घर में रात की रानी की वो बेल देखी जिससे खुशबू निकल कर पूरे गांव में फिर रही थी। शीश ने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कई बार तुम्हें रात को इस बेल के पास देखा है। मैं समझ गया कि तुम्हें भी रात की रानी पसंद है जिससे खुशबू निकलती है। फिर एक रात तुम डर गई, शायद तुमने मुझे देख लिया था। उसके बाद तुम फिर कभी उसके पास नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से तुम डर गई हो, इसलिए आज मैं यहाँ आ गया। शीश ने मुस्कुराकर कहा तो पहली बार जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जो कोई भी है उसे इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से कहा। मैं जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। इस खुशबू वाली बेल के पास आ जाया करो, मेरे सिवा यहाँ और कोई नहीं होता। शीश ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी मुस्कुराई। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी, दूसरी मखलूक सही, मगर उसे यह खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं कल आऊँगा, शीश ने जानकी से कहा। और उसके देखते ही बंद दरवाजे वो आर पार हो गया। जानकी का दिल कर रहा था कि वो उससे इसी तरह बैठकर बातें करता, मगर जानकी ये बात उसे ना कह सकी। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। वो जा चुका था। सर्दी और खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद लिए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर आकर लेट गई। उसे अब आने वाली रात का इंतज़ार था। उसके बाद जानकी का यह मामूल बन गया था। रात गहरी होते ही वो रात की रानी की बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों वो बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ही ये बातें जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार समझते थे। उनकी दोस्ती को अब 1 साल गुजर चुका था। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा कि वो मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उसे बताया कि वो तो मुसलमान ही पैदा हुआ था, उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सब सुनकर हैरान हुई कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। शीश और जानकी की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो काफ़ी अरसे तक सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान हुआ। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती जाए। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया और जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो पड़ी। 1-2 बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात को रात की रानी के पास खड़े होकर
باتیں کرتے دیکھا، مگر انہیں شیش نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ سمجھتے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کرتی ہے۔ ان کے پوچھنے پر جانکی بھی یہی کہتی کہ میں تو رات کی رانی سے باتیں کرتی ہوں۔ ارے بیٹا، بھلا پودے بھی کسی سے باتیں کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جانکی ہر روز رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے، البتہ وہ یہ جان نہیں پایا تھا کہ جانکی اس کس سے باتیں کرتی ہے۔ یہ جانکی کا پڑوسی ارجن تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے شہر میں آیا تو اسے جانکی کے گھر سے کوئی سرگوشیاں سنائی دیں۔ غور کرنے پر ارجن کا معلوم ہوا کہ یہ آواز جانکی کی ہے۔ اس نے دیوار سے ذرا سا سار نکال کر جانکی کے گھر میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو وہ رات کی رانی کے پاس کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارجن کو وہاں کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ ارے یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، یہ تو پودوں سے باتیں کرتی ہے اور وہ بھی رات کو۔ ارجن نے سوچا پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ مسکرایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ ارجن نے جانکی کے ماں باپ سے بھی یہ بات کی کہ ان کی بیٹی رات کو پودوں سے باتیں کرتی ہے۔ ایک رات ارجن کہیں باہر سے اپنے گھر رات کو لیٹ واپس آیا۔ اسے ہلکی ہلکی جانکی کی آواز آئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جانکی کے گھر میں جھانکا۔ ارجن نے اس کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ اسے بہت حیرانی ہوئی کہ جانکی اٹک اٹک کر کوئی اور بھی زبان بول رہی ہے، جیسے وہ کسی سے سبق پڑھ رہی ہو۔ پھر اچانک ہی جانکی نے کسی کو سلام کیا، السلام علیکم، لیکن ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ مزید غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ جانکی کی یک طرفہ آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جانکی دیواروں سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی اور اس بار وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پر جیسے بجلی آ گری ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ طیبہ ہے۔ ارجن نے سوچا تو کیا جانکی مسلمان ہو گئی ہے؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ ان کی بیٹی گھر سے باہر نہیں نکلتی تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو گئی۔ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا بیٹا؟ مگر جانکی کے جواب سے وہ دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے۔ پھر جانکی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے، مگر اس نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اس کے ماں باپ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی جان کی اور انہیں یہاں کے لوگوں سے بہت خطرہ ہے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی کمروں میں گئے، دیوار پلنگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر سے آواز سنائی دی تھی، شیش آج اتنی جلدی آ گیا ہے؟ اس نے مسکرا کر سوچا اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ پر سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ منہ پر ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ جانکی کے جسم میں نکلنے والا خون زمین کو تر کر رہا تھا۔ شیش آج اپنے وقت پر آیا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے میں گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ جانکی شیش پوری قوت سے چلایا اور تیزی سے اس کے قریب گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا، پر اس کی آواز سوائے اس کے کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ وہ زاروں قطار روتا رہا۔ اگلی صبح جانکی کے ماں باپ نے اس کی لاش دیکھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی مسلمان ہو چکی ہے، اس لیے اس کے ماں باپ نے اسی کمرے میں
ایک گڑھا کھودا کہ اسے وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ پھر خود وہ دونوں اسی روز وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ اگر مسلمان ہونے پر کوئی جانکی کو مار سکتا ہے تو ان دونوں کو بھی ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ یہ بتا کر اس لڑکی کے دوبارہ سے رونے اور سسکنے کی آواز سن کر احمد ہوش میں آ گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، جس جگہ پر تم موجود ہو اسی کمرے میں میری لاش دفن ہے، جس کو بغیر غسل کے دفنایا گیا تھا، اس لیے میری بے چین روح آج بھی اس گھر میں پھرتی ہے، تم میری مدد کرو۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بیان کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کسی نے ارجن سمیت یہ بتا کر اس لڑکی کے دوبارہ سے رونے اور سسکنے کی آواز سن کر احمد ہوش میں آ گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، جس جگہ پر تم موجود ہو اسی کمرے میں میری لاش دفن ہے، جس کو بغیر غسل کے دفنایا گیا تھا، اس لیے میری بے چین روح آج بھی اس گھر میں پھرتی ہے، تم میری مدد کرو۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بیان کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر میں گھسے تھے، اور ان کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی کا دوست شیش تھا۔ احمد کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے جانکی سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے سکون کے لیے اس کو تدفین کرائے گا۔ صبح ہونے پر احمد نے کچھ مزدوروں کو بلا کر کدال سے کھدائی کروانا شروع کی۔ وہاں پر انسانی ہڈیاں موجود تھیں اور یہ یقیناً جانکی کی تھیں۔ اس کی بچی کچی باقیات کو باقاعدہ طور پر غسل دلوا کر کفنا دفنا کر گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ احمد نے دل سے دعا کی کہ جانکی کو سکون مل جائے اور اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پھر مزید 2 دن گزارنے کے بعد احمد نے وہ گھر چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد کبھی اس گھر میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔